Hello and welcome back, dear students. Wish you all stay happy, healthy, and safe at home and do your studies regularly and properly. I'm Yojana Parak, and today we are going to start a new chapter for Standard 3 students from your English Grammar textbook. The name of this chapter is Prepositions. Now you must be thinking, what is preposition? So, first of all, I want to tell you that preposition is one of the parts of speech. Now, the second question which may arise in your mind, that what is its use? So, preposition is used to tell you about the position or situation or movement or direction or time of any particular noun or pronoun, and it is the connecting link or relative link between the noun and pronoun and the rest of sentence. That means it tells about the relation of noun and pronoun and the rest of sentence. Now, third question which may arise, that where it is used. So preposition is used just before the noun because it tells about the position or situation or movement or direction or time of that particular noun. So as it is informing about the noun, so it is just used before the noun. Now I again repeat that preposition tells you about the position, movement, situation, direction, or time of any particular noun or pronoun, and it shows the relation between that noun and pronoun and the rest of sentence. And it is used just before the noun or pronoun. Simply, if I tell you, then in this name, preposition, it is added, position word is added here. So by the name, easily you can understand that it tells you about the position. Now this topic would be more clear if you will see few examples. So let us move to the examples. And we will try to find out whether, if we use this sentence without this preposition, how that sentence would be, whether it will make any sense or not, and what sense does that preposition gives. Okay, यहाँ पर इस प्रपोजिशन का क्या यूज़ है, वो क्या मीनिंग देता है, और उस प्रपोजिशन के बिना अगर ये सेंटेंस होता तो उसका क्या मीनिंग होता, ये हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. सो लेट अस सी दिस एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन हियर इज द वेजिटेबल्स आर इन द बास्केट. वेजिटेबल और बास्केट के बीच में क्या रिलेशन है एंड उनकी क्या पोजीशन है, ये बताने वाला वर्ड जो है दैट इज़ योर प्रपोजिशन. तो वेजिटेबल बास्केट के अंदर है, अंदर यानी इन. सो यहाँ पर वेजिटेबल और बास्केट की पोजीशन बताने वाला वर्ड जो है दैट इज़ योर प्रपोजिशन, कि वेजिटेबल बास्केट के अंदर है, दैट इज़ इन. In is your preposition. If the sentence would be without this preposition, then the sentence would be like this. The vegetables are the basket. Vegetables basket है नहीं, तो दोनों के बीच में लिंक क्या है कि वेजिटेबल की पोजीशन क्या है. तो ये कैसे पता चलेगा? प्रिपोजिशन से. वेजिटेबल और बास्केट के बीच का लिंक भी वही है और उन दोनों की पोजीशन बताने वाला वर्ड भी वही है. सो यहाँ पर इन जो दिया है ये बताता है कि वेजिटेबल बास्केट के अंदर है. तो बास्केट और वेजिटेबल का रिलेशन और उसकी पोजीशन बताने वाला वर्ड जो है दैट इज़ इन, दैट इज़ योर प्रिपोजिशन. सो यहाँ पर इन ये उसकी पोजीशन बता रहा है. नेक्स्ट इज योर नोटबुक इज केप्ट ऑन द डेस्क. डेस्क के ऊपर, तो उसकी पोजीशन क्या है कि वो डेस्क के ऊपर है. सो ऑन दिस वर्ड इज योर प्रिपोजिशन. नेक्स्ट इज द कैट इज अंडर द बेड. सो कैट का पोजीशन क्या है कि वो बेड के नीचे है. सो नीचे ये वर्ड जो है आपका प्रिपोजिशन है. नेक्स्ट इज लुक एट द बर्ड होवरिंग ओवर द डस्टबिन. उसकी पोजीशन क्या है कि वो डस्टबिन के ओवर यानी ऊपर है. सो ओवर इज योर प्रिपोजिशन. नेक्स्ट इज देयर इज़ अ पार्क नियर माई हाउस. पार्क और हाउस के बीच का रिलेशन क्या है और दोनों की पोजीशन क्या है कि वो पार्क हाउस के पास में है. सो उन दोनों की पोजीशन क्या है कि वो दोनों आस पास में है. सो नियर इज़ योर प्रिपोजिशन. नियर यानी पास. नेक्स्ट इज द ड्राइवर पार्क्ड द स्कूल बस इन फ्रंट ऑफ द गेट. इन फ्रंट ऑफ यानी सामने. सो उसकी पोजीशन क्या है कि वो गेट के सामने है. इन फ्रंट ऑफ दैट इज़ योर
preposition. Next is the cake is kept between a plate of samosa and a jar of toffee. So cake की position क्या है कि वो बीच में है समोसा की प्लेट एंड जार ऑफ टॉफ़ी के. ओके, सो यहाँ पर इन तीनों के बीच में लिंक क्या है और इन तीनों की पोजीशन क्या है वो बताने वाला वर्ड दैट इज योर प्रीपोजिशन. So first the plate of samosa and then cake and then the jar. This you will come to know by the word between, that the cake is between the plate of samosa and jar. ये दोनों के बीच में है, बीच में, that is your preposition. That means between is your preposition that tells you about the position of the cake. Next is Abdul is hiding behind that tree. अब्दुल और ट्री के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों की क्या पोजीशन है, दैट अब्दुल इज बिहाइंड यानी पीछे, ट्री के पीछे है. सो पीछे ये उसका पोजीशन बता रहा है, दैट इज योर प्रीपोजिशन. नेक्स्ट इज आई वॉन्ट टू सिट बिसाइड यू. बिसाइड यू यानी बाजू में. सो उन दोनों का पोजीशन क्या है या फिर उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है ये बताने वाला वर्ड दैट इज योर प्रीपोजिशन, जो यू और रेस्ट ऑफ सेंटेंस के बीच में लिंक बना रहा है. ओके, सो यहाँ पर बिसाइड यानी बाजू में जो उसकी पोजीशन बता रहा है दैट इज योर प्रीपोजिशन. नेक्स्ट एग्जांपल गिवन हियर इज द मजिशियन प्लेस्ड अ कॉइन इनसाइड द बॉक्स. If I remove this preposition from here, what would be the sentence? The magician placed a coin the box. Coin और box के बीच में क्या relation है? We don't know. And coin और box की position क्या है? That we also don't know. So उसके लिए हमें preposition चाहिए जो उनकी position भी बताएगा और इन दोनों के बीच में link भी बताएगा. So इस coin और box के बीच में क्या link है और दोनों की क्या position है कि coin box के अंदर है, inside. So inside, that is your preposition. Next sentence is Malini and I sat at a table outside the cafe. So यहाँ पर टेबल और कैफ़े के बीच में क्या रिलेशन है और दोनों की क्या पोजीशन है, दैट द टेबल इज़ आउटसाइड द कैफ़े. कैफ़े के बाहर है वो टेबल. सो इट इज़ शोइंग द पोजीशन ऑफ दिस टेबल एंड द कैफ़े. सो दैट इज़ योर प्रीपोजिशन. नेक्स्ट इज माई फ्लैट इज़ राइट अबाउ हीज फ्लैट. मेरा फ्लैट उसके फ्लैट के एकदम ऊपर है. अबाउ that tells you about the position of that flat, so that is your preposition. Next is there is a red spot below your left ear. आपके left ear और उस spot के बीच में क्या relation है, that the spot is just below your left ear. उस left ear के नीचे ही वो spot है. So यहाँ पर ये उस spot का position बता रहा है, so that is your preposition. Below is your preposition. Next is the children climbed up the tree. उन चिल्ड्रन का मूवमेंट यहाँ पर बता रहा है कि वो ट्री के ऊपर चढ़ रहे हैं. सो ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं, दैट इज द डायरेक्शन दैट दे आर द चिल्ड्रंस आर क्लाइंबिंग अप इन द अपर डायरेक्शन. सो यहाँ पर जो वर्ड आपको ट्री और उन बच्चों के बीच में लिंक बता रहा है एंड जो उन बच्चों की और ट्री की पोजीशन बता रहा है या फिर उनका मूवमेंट और उनका डायरेक्शन बता रहा है, दैट वर्ड इज़ योर प्रीपोजिशन. सो यहाँ पर अप जो डायरेक्शन बता रहा है दैट इज़ योर प्रीपोजिशन. नेक्स्ट इज शी रैन डाउन द स्टेयर्स. किस तरफ जा रही थी? स्टेयर्स से नीचे की तरफ जा रही थी. तो नीचे जाना दैट इज़ द डायरेक्शन, नीचे जाने के डायरेक्शन यानी नीचे का डायरेक्शन. So down is showing the direction and it is the connective link between the stairs and the rest of sentence. So down ये जो आपको direction बता रहा है that word is your preposition. Next is mother rushed into my room यानी mother का movement हुआ into my room. So ये जो word आपको movement बता रहा है mother और room के बीच में, that word is your preposition. सो मदर और रूम के बीच में क्या रिलेशन है, उसका क्या मूवमेंट था कि मदर मेरे रूम के अंदर आई, उनका मूवमेंट हुआ मेरे रूम के अंदर. सो दैट वर्ड इज इनटू, दैट इज योर प्रीपोजिशन. नेक्स्ट इज द अर्थ गोज अराउंड द सन. अर्थ ये सन के अराउंड आसपास घूमती है, उसकी चारों तरफ घूमती है. अराउंड यानी चारों तरफ. सो दैट वर्ड इज योर प्रीपोजिशन जो अर्थ का मूवमेंट बता रहा है.
keep in mind that around is used when you take round at the outer boundary. आप किसी भी चीज़ की आउटर बाउंड्री पर अगर उसके चारों तरफ घूम रहे हो, दैट इज अराउंड. सो ये यहाँ पर मूवमेंट बता रहा है एंड सन और रेस्ट ऑफ सेंटेंस यानी अर्थ और सन के बीच का कनेक्टिव लिंक भी है, उनकी पोजीशन भी बता रहा है और उसका मूवमेंट बता रहा है. सो ये जो वर्ड है ये आपका प्रीपोजिशन है. नेक्स्ट इज द ओल्ड मैन वॉक्ड अक्रॉस द हॉल से होकर गुजरा. सो अक्रॉस ये उस ओल्ड मैन का मूवमेंट बता रहा है कि हॉल की तरफ उसका क्या मूवमेंट था, वो हॉल के अक्रॉस होकर गया. सो अक्रॉस इज योर प्रीपोजिशन. नेक्स्ट इज द लेडी हरिड अलोंग द पाथ. वो पाथ से होकर गुजरी और वो भी हरिड यानी तेजी से. सो अलोंग ये उस लेडी का मूवमेंट बता रहा है, दैट इज योर प्रीपोजिशन. नेक्स्ट फ्यू सेंटेंस विच आर गिवन हियर, लेट्स सी देम. कीप इन माइंड कि अभी तक हमने देखा पोजीशन क्या है, उस पर्टिकुलर नाउन की उनका डायरेक्शन क्या है एंड उनका मूवमेंट. सो ये तीनों चीज़ बताने वाले वर्ड हमने देखे जो प्रीपोजिशन थे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी दैट द प्रीपोजिशन विच टेल्स यू अबाउट द टाइम. ओके, सो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि प्रीपोजिशन क्या क्या चीज़ बताता है. नाउन और रेस्ट ऑफ सेंटेंस के बीच में लिंक भी बताता है एंड उस नाउन की क्या पोजीशन है, क्या सिचुएशन है, क्या उसका मूवमेंट है, किस डायरेक्शन में है, ये बताने वाला वर्ड जो है दैट इज़ योर प्रीपोजिशन. ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल. वी क्वाइटली वॉक्ड थ्रू द जंगल. जंगल में से होकर गुजरी, जंगल के बीच में से. ओके, सो जंगल ये एक वाइड एरिया है और उसके अंदर से अगर आप थ्रू होकर गुजरते हो, सो यहाँ पर आपका मूवमेंट बता रहा है एंड जब आप अंदर से गुजरते हो दैट इज कॉल्ड थ्रू. सो थ्रू यहाँ पर मूवमेंट बता रहा है, दैट इज योर प्रीपोजिशन and it is used just before the noun jungle and it is the connective link between the jungle and the rest of sentence. Next sentence is pass this book to her. So इस बुक का मूवमेंट होगा उसकी तरफ. So to ये जो वर्ड है ये मूवमेंट बताता है, दैट इज योर प्रीपोजिशन. नेक्स्ट इज आई सो विक्रम वॉकिंग टूवर्ड्स द केमिस्ट शॉप. मूवमेंट हो रहा है विक्रम का किस तरफ, केमिस्ट शॉप की तरफ. सो टूवर्ड्स ये उसका मूवमेंट बता रहा है कि वो केमिस्ट शॉप की तरफ जा रहा है, दैट इज योर प्रीपोजिशन. नाउ लेट्स सी फ्यू मोर एग्जाम्पल. If you talk about time, then the preposition would be used like this. So अगर आप किसी बहुत बड़े टाइम पीरियड की बात कर रहे हो और उस टाइम पीरियड के अंदर कोई इवेंट हुआ है तो आपको बताना है. सो यहाँ पर आपको ईयर दिया हुआ है और ईयर तो 365 डेज़ का होता है, काफ़ी बड़ा होता है. सो उसके अंदर कोई मूवमेंट हुआ है, कोई एक्शन हुआ है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे इन. जब भी आप एक ईयर की बात कर रहे हो तब आप उसके पहले इन यूज़ करोगे कि उस साल के अंदर कोई भी एक्शन हुआ था. सो यहाँ पर उस एक्शन के बीच में और उस ईयर के बीच में क्या रिलेशन है कि उन दोनों का अकरेंस किस टाइम पर हुआ था, ये बताने वाला जो वर्ड है दैट इज़ योर प्रीपोजिशन. जब आप टाइम के कंसर्न में, यहाँ पर नाउन के कंसर्न में नहीं है, ये टाइम के कंसर्न में है, जब प्रीपोजिशन यूज़ होता है तो वो उस टाइम और रेस्ट ऑफ सेंटेंस के बीच का लिंक बनता है. द वर्ड विच शोज यू द रिलेशन बिटवीन दैट टाइम पीरियड एंड द रेस्ट ऑफ सेंटेंस, दैट इज़ योर प्रीपोजिशन हियर. सो यहाँ पर 2015 एंड उस फैमिली की भूटान जाने की उनकी जो विज़िट थी उसके बीच में क्या रिलेशन है कि ये जो विज़िट है ये 2015 के अंदर हुआ था. सो दैट वर्ड इज़ इन. In is your preposition that shows the link between the time and the rest of sentence. अगर आपको ईयर दिया है तो आप इन यूज़ करोगे, वही अगर एक कोई पर्टिकुलर डे दे दिया है तो आप ऑन यूज़ करोगे, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर फिक्स टाइम दे दिया है तब आप एट यूज़ करोगे. नेक्स्ट सेंटेंस इज दिस मार्केट इज़ क्लोज्ड ऑन मंडेज. If you remove this preposition, then what would be the sentence? This market is closed Mondays.
सो मंडे का और उस मार्केट के क्लोज होने का क्या रिलेशन है, या इस टाइम का इस बाकी के सेंटेंस के साथ क्या कनेक्शन है, ये शो करने वाला जो वर्ड है दैट इज़ प्रीपोजिशन, कि मंडे को ही ये मार्केट क्लोज रहता है. सो द वर्ड विच टेल यू अबाउट द रिलेशन बिटवीन दैट पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर डे and the rest of sentence, that word is your preposition. Next sentence is we will meet in the park at 5 o'clock. फिक्स 5 o'clock पर हम पार्क में मिलेंगे. तो हम मिलेंगे और 5 o'clock के बीच में क्या रिलेशन है कि ये एक्शन उसी पर्टिकुलर टाइम पर अकर होगा. ओके, सो यहाँ पर एट जो दिया है ये एक फिक्स टाइम के लिए यूज़ होता है कि उस फिक्स टाइम पर ये एक्शन अकर होगा. तो एट जो है ये आपका प्रीपोजिशन है. नेक्स्ट सेंटेंस इज आई विल बी बैक बाय 7 o'clock. बाय यानी 7 o'clock लास्ट तक मैं आ ही जाऊंगी. सो यहाँ पर एक्शन का लास्ट टाइम क्या होगा तो ये बताने वाला, या फिर 7 o'clock और उस एक्शन के बीच का लिंक बताने वाला वर्ड जो है बाय, दैट इज़ योर प्रीपोजिशन. बाय यानी तक. ओके, सो 7 o'clock लास्ट टाइम होगा, उसके बाद नहीं. ये एक्शन का अकरिंग लास्ट 7 o'clock तक होगा. नेक्स्ट सेंटेंस आई हैवंट सीन मेघा सिंस मॉर्निंग, एंड उसके बाद का जो सेंटेंस है ही टेक्स अ नैप एवरी आफ्टरनून फॉर एन आवर. अब सिंस और फॉर के बीच में क्या रिलेशन है. सिंस और फॉर दोनों भी ये बताते हैं कि वो एक्शन एक पर्टिकुलर टाइम से या एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक वो कंटिन्यू है, यानी किसी भी एक्शन का कंटिन्यूएशन बताना हो तो सिंस और फॉर यूज़ होता है. तो ये तो हमें पता चल गया कि दोनों में कॉमन चीज़ क्या है कि वो कोई भी एक्शन का कंटिन्यूएशन बताते हैं. तो दोनों भी डिफरेंस क्या है दोनों का, सिंस और फॉर का. जब दोनों भी ड्यूरेशन ही बताते हैं तो दोनों का अलग अलग यूज़ क्यों हुआ है. सो अगर आपको ये पता हो कि वो एक्शन जो कंटिन्यू है उसकी बिगनिंग कब से हुई थी, वो बिगनिंग का पर्टिकुलर पीरियड अगर आपको पर्टिकुलर टाइम अगर आपको पता है तो आप सिंस यूज़ करोगे. लेकिन आपको ड्यूरेशन नहीं पता, और अगर आपको ड्यूरेशन पता है बट उसका बिगनिंग पॉइंट नहीं पता, तब आप फॉर यूज़ करोगे. जैसे यहाँ पर एग्जांपल में बोला है कि मॉर्निंग से नहीं देखा. सो नहीं देखने का जो एक्शन है वो कंटिन्यू है. कब से, उसका बिगिनिंग पॉइंट क्या था, मॉर्निंग. सो मॉर्निंग से ही एक्शन कंटिन्यू है कि उन्होंने उसको नहीं देखा, मेघा को नहीं देखा. तो ये जो एक्शन है ये मॉर्निंग से कंटिन्यू है, तो इस एक्शन का कंटिन्यूएशन का बिगिनिंग पॉइंट यहाँ पर बताया है तो हम सिंस यूज़ करेंगे. लेकिन हमें ये नहीं पता कि एक्शन कितने टाइम तक कंटिन्यू रहा, तो उसका ड्यूरेशन हमें नहीं पता, बस उसका कंटिन्यू होने का बिगिनिंग पॉइंट पता है, ड्यूरेशन नहीं पता, तब हम सिंस यूज़ करेंगे. और अगर हमें ड्यूरेशन पता है, जो नेक्स्ट सेंटेंस में दिया है फॉर एन आवर, वो नैप लेती है आफ्टरनून में, तो ड्यूरेशन तो पता है लेकिन ये ड्यूरेशन बिगिन कब होता है ये नहीं पता. अगर आपको बिगिनिंग पता है तो सिंस यूज़ करोगे, और बिगिनिंग नहीं पता है, ड्यूरेशन पता है, तब आप फॉर यूज़ करोगे. सो सिंस और फॉर दोनों भी किसी भी एक्शन के कंटिन्यूएशन को बताते हैं. अगर आपको बिगिनिंग पॉइंट पता है लेकिन ड्यूरेशन नहीं पता, तब आप सिंस यूज़ करोगे. और अगर आपको ड्यूरेशन पता है, बिगिनिंग पॉइंट नहीं पता, तब आप फॉर यूज़ करोगे. यहाँ पर मॉर्निंग जो है वो बिगिनिंग पॉइंट है, बट वो कब तक एक्शन कंटिन्यू रहा, ड्यूरेशन हमें नहीं पता, तब हमने सिंस यूज़ किया. एंड नैप फॉर एन आवर, 1 घंटे तक सोना. सो इसका ड्यूरेशन हमें पता है कि वो 1 घंटे तक सोया, लेकिन वो 1 घंटा बिगिन कब से हुआ वो हमें नहीं पता, तब हम फॉर यूज़ करेंगे. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. The hills are crowded during the summer season. हिल्स पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है कब, ड्यूरिंग द समर सीज़न. सो एक पर्टिकुलर पीरियड के टाइम पर ही एक्शन होता है, उस पर्टिकुलर पीरियड के कंटिन्यूएशन के साथ ये एक्शन भी कंटिन्यू रहता है. दैट वर्ड इज शोइंग, द वर्ड विच इज शोइंग द ड्यूरेशन, दैट इज़ योर प्रपोजिशन. सो यहाँ पर इस एक्शन का ड्यूरेशन बताने वाला वर्ड यानी ड्यूरिंग, ये आपका प्रीपोजिशन है कि समर सीज़न के दौरान, जब तक ये समर सीज़न कंटिन्यू रहता है तब तक हिल्स पर बहुत क्राउड रहता है. सो यहाँ पर समर सीज़न का कंटिन्यूएशन और क्राउड का कंटिन्यूएशन साथ में है, दोनों का ड्यूरेशन एक ही है, और समर सीज़न के दौरान ही
ये एक्शन होता है. सो दौरान ये मीनिंग जो दे रहा है आपको वो वर्ड है ड्यूरेशन, ड्यूरिंग, दैट इज योर प्रिपोजिशन. नेक्स्ट इज वी रिच्ड होम बिफोर सनसेट, सनसेट के पहले. तो यहाँ पर सनसेट और घर आने के बीच में क्या रिलेशन था कि सनसेट से पहले घर आ गए. तो पहले ये जो वर्ड बताता है, जो रिलेशन बता रहा है सनसेट और बाकी के सेंटेंस का, या फिर जो ये बता रहा है कि वो एक्शन उस पर्टिकुलर टाइम के साथ कब लिंक रखता है, कैसे अकर होता है. सो दैट वर्ड इज़ योर प्रिपोजिशन, जो इस टाइम और रेस्ट ऑफ सेंटेंस के बीच का लिंक है और ये बताता है कि ये एक्शन इस टाइम पे कब हुआ था, उसकी पोजीशन क्या थी, उस एक्शन की उस टाइम पर क्या पोजीशन थी. सो यहाँ पर वापस आने का जो एक्शन है उसकी पोजीशन सनसेट के टाइम पर क्या थी कि वापस आने का एक्शन सनसेट के पहले हो गया था. सो पहले यानी बिफोर, ये जो वर्ड है आपका पोजीशन बता रहा है उस एक्शन का उस टाइम पर कि वो एक्शन सनसेट के पहले हो गया था, तो उसका पोजीशन यानी पहले था. तो ये जो बिफोर वर्ड है ये आपका प्रीपोजिशन है, जो पोजीशन बताता है उस एक्शन की जो अकर हुआ था उस पर्टिकुलर टाइम पर. वी वेंट आउट आफ्टर लंच. सो यहाँ पर लंच और रेस्ट ऑफ सेंटेंस के बीच का क्या लिंक है एंड ये एक्शन की क्या पोजीशन थी उस पर्टिकुलर टाइम पर. सो ये बताने वाला वर्ड जो है दैट इज़ योर प्रीपोजिशन. सो ये एक्शन लंच के बाद हुआ, आफ्टर ये आपका प्रीपोजिशन है. नेक्स्ट सेंटेंस, दिस शॉप इज़ ओपन फ्रॉम 9 AM टिल 8 PM एवरी डे. अगर इसमें से फ्रॉम और टिल रिमूव कर दें देन दिस सेंटेंस वुड बी दिस शॉप इज़ ओपन 9 AM 8 PM एवरी डे. तो 9 AM और 8 PM का बाकी के सेंटेंस के साथ क्या लिंक है ये हमें नहीं समझ आएगा. तो उसके लिए हमें प्रीपोजिशन यूज़ करना पड़ेगा कि ये एक्शन और इस टाइम के बीच में क्या लिंक है या इस एक्शन की उस पर्टिकुलर टाइम पर क्या पोजीशन थी. ये वर्ड जो जो बताता है वो वर्ड है आपका प्रीपोजिशन. सो यहाँ पर ओपनिंग की पोजीशन 9 AM पर क्या थी, फ्रॉम यानी से. तो तब से ओपनिंग का एक्शन शुरू हुआ था. फ्रॉम ये बताता है कि इस पर्टिकुलर टाइम से एक्शन शुरू हो रहा है. एंड देन टिल, टिल ये बताता है कि इस टाइम पर ये एक्शन एंड हो जाएगा. सो यहाँ पर फ्रॉम और टिल ये बताता है कि इस एक्शन का उस टाइम के साथ क्या रिलेशन है और इस टाइम पर वो एक्शन की क्या पोजीशन थी. सो यहाँ पर जो ओपनिंग का एक्शन है वो उसकी बिगनिंग पोजीशन थी 9 AM. ये कैसे पता चलता है कि वो बिगनिंग पोजीशन थी, फ्रॉम से. एंड 8 AM को उसकी एंडिंग पोजीशन थी, ये कैसे पता चलता है, टिल से. सो टिल ये बताता है एक्शन की एंडिंग पोजीशन और फ्रॉम बताता है एक्शन की बिगनिंग पोजीशन उस पर्टिकुलर टाइम पर. सो फ्रॉम और टिल ये हमारा प्रीपोजिशन है. फ्रॉम बिगनिंग बताता है एंड टिल एंड बताता है. Now here the examples are completed. I hope that with these examples this topic might have been clear to you कि preposition क्या है, कैसे यूज़ होता है, क्या मीनिंग देता है. So again I repeat that preposition is one of the parts of speech and it is used to tell you about the position of that particular noun or pronoun or time, and it is the connective link or relative link between that particular noun and pronoun and the rest of sentence. It shows the relation between that noun and pronoun and the rest of sentence, and as it tells you about the position of that particular noun and pronoun, it is used just before that noun or pronoun. So ये आई थिंक आपको क्लियर होगा अब इतने सारे एग्जाम्पल देखने के बाद. नाउ यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं एंड नाउ वी विल मूव टू द एक्सरसाइज टू इवेल्यूएट हाउ मच वी हैव अंडरस्टूड विद दिस एग्जाम्पल्स. सो ये इवेल्यूएशन अब हम करेंगे विद द एक्सरसाइज कि हमें अभी तक कितना समझ में आ गया है एंड इन प्रीपोजिशन का कब यूज़ होता है, कहाँ यूज़ होता है, किस मीनिंग से यूज़ होता है, इन प्रीपोजिशन का क्या मीनिंग है. सो ये हमें पता चलेगा जब हम अपने आप को इवेल्यूएट करेंगे विद द एक्सरसाइज. So let us move to the exercise. Now let's start the exercise. Here first question is given. Fill in the blanks with prepositions from the box.
So here few options are given and you have to choose the appropriate option suitable according to the sentence. Let's see the first sentence. The tired villager sat dash a tree and rested. Here it can be any of the option. Let us check any all the options one by one. So first option is during, that is used for time period, and in the first sentence time period is not given. Next, into, so no one can enter into the tree, that also cannot be possible. Next is after, so that is also used for time duration and here time duration is not given, so this option also cannot be the true one. Next is under, yes, rest can be taken under the tree, so it can be the suitable option. So the sentence here will be the tired villager sat under a tree and rested. Next is it snowed heavily dash the night. Night is a time period. Day, night, afternoon, evening, that is a time period because it continues for a longer period. So that it snowed heavily during the night can be the option because नाइट के टाइम पर स्नोफॉल हो रहा था, वो कंटिन्यू था. नेक्स्ट इज a stray cat wandered dash our house. सो ड्यूरिंग और अंडर तो हो गया. नेक्स्ट ऑप्शन जो बचे हैं उसमें है इनटू, आफ्टर, नियर एंड एट. सो अगर कैट वंडर करेगी तो वो हाउस के अंदर वंडर कर रही है. स्ट्रे कैट अंदर यानी इनटू, बिकॉज यहाँ पर मूवमेंट बताया है इसलिए इनटू वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. पोजीशन नहीं बताई है, कोई एक जगह पर वो कैट स्टैच्यू होकर बैठी नहीं है या खड़ी नहीं है, वो मूवमेंट कर रही है. एंड व्हेन मूवमेंट इज गिवन देन नियर एंड एट कैन नॉट बी यूज, सो इनटू वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. Next is there is a cinema hall dash my house. Here cinema hall cannot move, so the position is given here, so near would be the correct option. Next is Jaspreet left the party dash 8 o'clock. 8 o'clock time is given and particular time is given, so for that 8 would be the suitable one. Next is we enjoyed the walk home dash the film. So film is also for a particular period and after ending that one can go. So after can be the suitable option for this, that one action ended and then the next action started. To watch the film, that action was ended, and to walk, that action started. So after can be the suitable option here. In this way you have to fill these blanks with the correct option which you find suitable with your logic. Next question is match the words on the left with the words on the right to form sentences. Let's see the first one. There is a beautiful rainbow. Where can the rainbow be? It can be only in the sky. So we will match this with the third option, that is in the sky. Next is my school is. So where my school can be? Near my house. So that can be the correct option. Next is we will go. Where will we go? To the market. So we will match the third option with the second one. Next is let's meet. But where to meet? And when to meet? So here the correct option is given outside the theater at 3 o'clock. Next is I saw a little boy walking. Where can the boy walk? Obviously on road. So the suitable option would be across the road carelessly because he is little boy. Next is we have been waiting for our bus. Since what time? That we don't know. So here time duration is given for half an hour now. Here again I remind you, for is used because half an hour duration is given. But when that half an hour started, that beginning time is not given. That is why
the waiting is continue for half an hour. The duration of waiting is given for how much time that action continued. But when it started, that starting point is not given. That is why 4 is given here, because the duration is given. So 4 will be the correct one. Now let's move to the next exercise. Take the correct sentence and cross out the incorrect one in each pair. Let's see the first one. The cat jumped over the table. The cat jumped in the table. No one can jump in the table, obviously, because it is a flat surface. But one can jump over the table. That is possible. So that would be the correct one. Next is let's go to the mall and let's go at the mall. So when you want to go there, the movement will be there. So to show the movement, to is the suitable preposition, because at is used to show any particular time or any particular place. But here movement is shown. That is why the first option in which to preposition is given, that would be correct. Next is the fisherman sat in the boat to go fishing. And second one is the fisherman sat for the boat to go fishing. बोट के लिए नहीं बैठ सकता, बट बोट के अंदर बैठ सकता है. सो इन वुड बी करेक्ट. नेक्स्ट इज the distance between the two places is 6 kilometers. And the second is the distance in the two places is 6 kilometers. So whenever the difference is given to you between two things, so when it is talked about two things and something is in middle, so you will use between, okay, not in, because you are not entering in that particular thing, but you are talking about the difference in those, you are talking about difference between those two things. So here between would be the correct option. The distance between the two places is 6 kilometers. Next is give equal number of chocolates between the two girls, or give equal number of chocolates to the two girls. So here it is not talked about any kind of difference between two things, but the same thing will be distributed to both the girls in same way. And second thing, that the movement will be done of giving the chocolates. So here 2 would be the correct option, not between. Next is cricket chirped outside my window all through the night, or crickets chirped in my window all through the night. Again, the window is a flat surface, so no one can enter in it, so in would be the incorrect option. But one can stand outside the window, so here the cricket which chirped outside the window can be the correct option. So in this way, using your logic, you have to bifurcate first the preposition into the preposition of position, preposition of direction, preposition of movement, and preposition of time. And then you have to select the proper one which is suitable for the sentence. So in this way, you have to complete this exercise. Now I hope that after doing this exercise, this topic would be clear to you, and that and this explanation would be useful to you. So here this topic comes to an end, and this video has completed. Now we will meet in the next video with new topic. Till then, take care of yourself, be safe, and keep on learning. Thanks for being with me. See you.